Welcome to the platform of Dream University. My name is Dharmanshu Dhakar. This is our first demo class. I will help you in understanding the concept of political philosophy, that is liberty slash freedom. Before starting with that, let me give you some brief important information. We have created a Telegram group for PG Political Science entrance for this year. So I request you to join that, where you will receive all important information. Also regarding, we have started a batch. Uh, so this is our first demo class. So you will receive the link of that group in the description box. You will receive information related to syllabus, books, and we will also share some demo videos for you. So please join that group, and also the information for the new batch, the link to join that group is also available in the description box. Please check that before starting with the video. Uh, I have create also, let me tell you that I, along with Somdat, who is currently an assistant professor in Rajasthan, and I am also currently pursuing PhD. I am also a JRF qualified person. So this is just brief introduction of our faculty. Uh, so I have created a PPT for you. This video is based on the political concept of political philosophy, that is liberty slash freedom. I have created a PPT for you. Let me share that. Okay. Okay. Yes. Okay. I think we are good to go. Okay. So you can see the title. It is titled as liberty slash freedom. It is quite obvious with the title that I have used the term liberty and freedom interchangeably. Much of the scholars have agreed that these terms are almost synonymous, but as we progress, I will tell you that Marx does not use the term liberty. He uses the term freedom, and why he uses that will also be dealt in this lecture. So you have to wait for that. But as I have already told that much of the consensus has been made by scholars that these terms are used synonymously. And for that, if you read 11th class book of political theory, you will see that the chapter is titled as freedom, not liberty. So they have also used it as synonymously. Okay. आप देख सकते हैं कि जैसे इस टाइटल के नीचे मैंने फोटो लगाया है। ये फोटो है, इसमें एक नाम बहुत ऑब्वियस है जो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में कन्हैया कुमार खड़ा है। पर्पज इस फोटो का लगाने का ये था कि ये जो फोटो है वो फ्रीडम स्क्वायर का है। जेएनयू में एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के जस्ट सामने उसको बोलते हैं फ्रीडम स्क्वायर। अब उसका नाम क्यों है वो मुझे भी आइडिया नहीं है, हालांकि 2 साल में पढ़ा हुआ हूँ और उसका मुझे आइडिया नहीं। पर आप जो भी इसको समझिए, ये जो फोटो है और जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लिबर्टी स्लैश फ्रीडम, इसके बारे में बहुत बात हो रही है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजादी जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं है, वो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। वो आगे हम सब देखेंगे। तो ये जस्ट फोटो सिर्फ ये था कि जो भी एक आपका फ्रीडम के बारे में समझ है वो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, पर उसको पॉलिटिकल फिलोसफी में कैसे समझेंगे वो हम इस वीडियो के जरिए कोशिश करेंगे। तो फिर हम आते हैं
हाँ, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि इन इट एसेंस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ their lives and destinies, and to have opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Struggle for freedom represents the desire of people. People have a desire to be in control of their life and destinies, and to have opportunity to express themselves freely through their choices and activities. तो दो बातें क्लियर आ रही हैं कि पीपल हैव अ डिजायर कि वो अपनी लाइफ पे कंट्रोल हो, उनकी डेस्टिनी, वो आगे जाके क्या बनेंगे और वो किस टाइप का लाइफ जीना चाहते हैं, और उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, विच दे एक्सप्रेस थ्रू चॉइसेस, और उनकी जो एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो उस तरीके से एक और लाइन है जैसे इसके नीचे, टू enjoy individual freedom some constraints are necessary, but we should free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves. Uh, First, to enjoy individual freedom, कुछ constraints बहुत जरूरी हैं, because अगर सब लोग के ऊपर कोई भी constraint नहीं होगा, जिसको जो करना होगा एक तरीके से लिबर्टी को लाइसेंस की तरह समझेंगे, तो फिर हम लोग इंडिविजुअल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी हैव लॉ, वी हैव स्टेट to protect our individual freedom. So they impose certain constraints which are largely in the form of legal constraints. So, but there is a line, right? कि these constraints should free us from insecurity and provide us in the conditions which we can develop ourselves. These constraints should help in providing us those conditions where we can develop ourselves. These constraints should not be uh, imposed arbitrarily. It should widen the realm of development, right? Where we can develop ourselves. So, third is much of the discussion regarding freedom has focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constant and the restrictions. तो हमें जितना भी डिस्कशन पॉलिटिकल थियरी में फ्रीडम पर हो रहा है, वो सब बात हो रहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स इवॉल्व करे जाएं, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन से जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो सोशली जरूरी हैं और कौन से नहीं। क्योंकि कई बार स्टेट, सोसाइटी, ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स में हम इन्वॉल्व हैं, वो आपके ऊपर कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से नेसेसरी है, कौन से नहीं है। सो सबसे पहले तो हम फिर डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फ्रीडम है क्या एग्जैक्टली। तो फ्रीडम जो है, फ्रीडम इसमें डिफाइन करेंगे, फ्रीडम इज जनरली डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। To be free means to reduce or minimize social constraints that limit our ability to make choices freely. But this is only one aspect of freedom, that is negative freedom. तो इसमें बोल रहे टू बी फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कॉन्स्ट्रेंट दैट लिमिट अवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली। तो जितने कम से कम सोशल कॉन्स्ट्रेंट हों जो हमारी एबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, हम जो चॉइसेस बनना करना चाहते हैं, वो उस पर कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। बट दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, इट इज ओनली द डिमेंशन ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। ये अभी पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रहे। तो फ्रीडम ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव डिमेंशन। To be free, a society must widen the area in which individuals, groups, communities, or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be. Freedom, in this sense, allows the full development of individual creativity, sensibility, and capabilities. तो फ्रीडम ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी तो कलेक्टिव एक एफर्ट करना चाहिए कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे हम अपना इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, सेंसिबिलिटीज, इन सब का एक फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। आप देखिए कि सीधे सीधे दोनों अलग तरीके से बात कर रहे हैं। जो कि नेगेटिव फ्रीडम है वो बोल रहे हैं कि कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, हम अपनी चॉइसेस को फ्रीली बनाए। बट फ्रीडम का जो पॉजिटिव डिमेंशन वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी मस्ट एक्ट इन अ वे कि वो एक कंडीशंस बनाए जिसमें हम लोग अपना क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। जैसे लिखा है, फ्री सोसाइटी इज वन दैट एनेबल्स वन टू परस्यू वंस इंटरेस्ट विद द मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट्स। कम से कम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट जो है वो परस्यू कर सकते।
तो सेकंड है वाई फ्रीडम। फ्रीडम जरूरी क्यों भाई, मतलब इतना सब जो बातें हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मतलब इतना क्यों बोल रहे हैं कि जान से प्यारी आ जाती है, मतलब ऐसा है क्या। तो इसका शायद आपको जो आंसर है वो उसमें मिलेगा। फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल because it allows us to make choices and to exercise our judgment. It permits the exercise of the individual powers of reason and judgment. ये अलाउ करता है कि हम अपने इंडिविजुअल पावर है जो हमारे रीजन और जजमेंट का, वो अलाउ करता है। दैट इज वाई फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट। एंड ऐसे आगे जाके मार्क्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वो बोलते हैं कि अगर आप रीजन और जजमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं देन यू आर नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग, यू आर जस्ट एन एनिमल, राइट। स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ वेरी एनालॉगस कॉन्सेप्ट। इंडिया में लूजली ट्रांसलेशन फ्रीडम का जो क्लोज कॉन्सेप्ट मिलता है वो स्वराज है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, विच मीन्स बोथ सेल्फ रूल, हम खुद रूल करें, एंड रूल ओवर सेल्फ। तो दो डिमेंशन उसमें भी देखने को मिल रहे हैं कि सेल्फ रूल इज लाइक अ पॉलिटिकल फ्रीडम, कि इंडियंस शुड रूल इंडियंस, राइट, एंड रूल ओवर सेल्फ कि हम अपनी जो सेल्फ है उस पे रूल करें। मतलब हम अपनी जो आगे जाके हम जैसे हायर लोअर सेल्फ जो के बारे में बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि आपको अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना है। लेट्स सी कि तुम्हारा कल एग्जाम है, मन कर रहा है कि हम टेस्ट मैच देख लें इंडिया का, और पर हमारा एग्जाम है तो हमें अपने सेल्फ पे तक कंट्रोल होना चाहिए कि हम एग्जाम को प्रिपेयर करें rather than वॉचिंग मैच। तो वो एक तरीके से एक लूज एग्जाम्पल हुआ कि रूल ओवर सेल्फ पे क्या मिलता है। आगे जाके अब जब हम पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ये जस्ट मैंने एक कोशिश करा कि हम स्वराज के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें पॉलिटिकल थियरी के एक तरीके से। फिर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मैं शुरू में ही आपको बता दिए थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम होते हैं। और ये जैसे क्लासिफिकेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी में लार्जली मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओवर व्हाट एरिया आई एम द मास्टर, राइट। इसमें हम पूछते हैं कि कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें मैं मास्टर हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ, मेरे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। तो जनरली जैसे क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक पहला हेडिंग दे दिए कि थिंकर्स एसोसिएटेड विद नेगेटिव लिबर्टी आर बर्लिन, नॉजिक एंड क्लेग। ये तीन लोग जो हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं कि बर्लिन है, इज़राइल बर्लिन, नॉजिक है, रॉबर्ट नॉजिक, एंड एफ डब्ल्यू हैक है। ये तीन लोग इससे एसोसिएटेड है। कोई अगर एक क्वेश्चन आता है कि सर्टेन थिंकर्स आर एसोसिएटेड विद व्हिच काइंड ऑफ लिबर्टी, तो आप ये ध्यान रखिए कि बर्लिन, नॉजिक एंड हैक ये तीनों नेगेटिव लिबर्टी से एसोसिएटेड। फिर बर्लिन उनके एक फेमस वर्क है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1969 में लिखा है। इम्पोर्टेंट डेट भी याद रखें तो ज्यादा बेटर हो। प्रोवाइड्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बर्लिन जो है वो एक डिस्टिंक्शन करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, और वो एडवोकेट है नेगेटिव लिबर्टी के। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसको ध्यान में रखें। टर्म नेगेटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी इंडिकेट इंजंक्शन दैट प्रोहिबिट एक्ट दैट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। तो सर्टेन इंजंक्शंस हैं जो प्रोहिबिट करते हैं एक्ट्स जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नेगेटिव जो वर्ड यूज करा जा रहा है नेगेटिव लिबर्टी में वो इंजंक्शंस बता रहे हैं कि जो प्रोहिबिट एक्ट दैट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। Berlin makes it clear that incapacity to attain a goal is not unfreedom. For him, negative liberty as freedom is opportunity to act, not action itself. ये एक मेजर डिस्टिंक्शन होगा कि बर्लिन बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी इनकैपेसिटी है किसी गोल का अटेन करने की, तो वो फ्रीडम नहीं माना जाता, तो वो अनफ्रीडम नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके से। इट मीन्स कि लेट्स से कि आपको uh, कोई नहीं रोक रहा है कि आप अडानी बनिए, आप एक बड़ा कैपिटलिस्ट बनिए, आपका कोई नहीं रोक रहा है, बट आप नहीं बन पा रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू बर्लिन इट्स नॉट अनफ्रीडम। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस करने की, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक बड़े कैपिटलिस्ट बने, पर आप नहीं बन पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बर्लिन वो अनफ्रीडम नहीं। तो एक टर्म याद रखना है, जिससे मैं बीच बीच में कुछ टर्म हाईलाइट करती हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहे। जैसे नेगेटिव लिबर्टी को आप याद रखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जो टेलर ने दिया, आगे जाके चार्ल्स टेलर के बारे में बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है। सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको कि आप अपनी चॉइसेस की एक्सरसाइज करें, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए। इससे आगे नेगेटिव लिबर्टी डील नहीं कर रहा है। देन पॉजिटिव लिबर्टी इस चीज से डील करेगा।
पॉजिटिव लिबर्टी पे मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है हु गवर्न्स मी, कौन मुझे गवर्न करेगा, वो आइडियल एक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मैं खुद डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। थिंकर्स एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लिबर्टी आर रूसो एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस न्यू मार्क्सिस्ट हैं, आगे जाके आईआर में और आगे जाके मार्क्सिज्म में भी हम इसको पढ़ेंगे, पर ये जस्ट मैंने एक हेडिंग डाल दी कि आप याद रखें। हर्बर्ट मार्क्यूस करके एक राइटर हैं, उनके एक बुक फेमस है वन डायमेंशनल मैन, वो भी याद रखें आप। न्यू मार्क्सिस्ट हैं ये, रूसो और हर्बर्ट मार्क्यूस प्लस मार्क्स, तीन लोग इससे एसोसिएटेड हैं पॉजिटिव लिबर्टी से। और भी लोग हैं पर लार्जली ये आपको याद रखने हैं। The concept of positive liberty proceeds with the idea that each self has a higher self and lower self। जो स्वराज में हम बात कर रहे थे कि रूल ओवर सेल्फ, वो कुछ इसी तरीके का बात था। The higher self, the rational self, should attain mastery over the lower self for an individual or a people to be liberated and positive liberty। तो जैसे मैं बोल ही रहा था कि आपका एग्जाम मान लीजिए कि कल है और आपको मैथ देखना है, टेस्ट मैथ देखना है, तो ये वही बोल रहे हैं कि आपका एक हायर सेल्फ है जो आपको बता रहा है कि रेशनली आप सोचिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपका एग्जाम है। मैच बहुत सारे होते हैं, आप लोग देख सकते हो। हालांकि क्रिकेट फ्रेंड्स आके मुझे ये ना बोलने लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के टेस्ट में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आप डिसाइड करिए। तो हायर सेल्फ जो है वो रेशनल सेल्फ है, फिर रैशनल सेल्फ है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई अपना एग्जाम है, पढ़िए, और मैच बाद में देख सकते हैं, हाईलाइट देख सकते हैं, पर पेपर का कोई हाईलाइट नहीं होगा, आप एक हाईलाइट बन जाएंगे उसमें। तो आपको पढ़ने जाना चाहिए। तो हायर सेल्फ आपको बोल रहे कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, लोअर सेल्फ है वो आपको बोल रहे नहीं यार मैच देखते हैं, एक टेम्पटेशन है कि हमें मैच देखना चाहिए। तो वो हमें डिसाइड करने कि हमें हायर सेल्फ शुड गाइड अस, राइट, which means the rational self should guide us। Positive liberty is the freedom to do। Positive liberty है कि do you have the freedom to do this, that or to become something, right? तो वो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है टेलर के द्वारा, ठीक है। तो अनलाइक आप ये याद रखिए कि कुछ याद नहीं रह रहा है तो इतना याद रखिए कि नेगेटिव लिबर्टी अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, एंड पॉजिटिव लिबर्टी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी में सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपको जो करना है, जो बनना है बनिए, एंड एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में आपको बोल रहे हैं कि डू यू हैव दिस काइंड ऑफ सोशल कंडीशंस which can make you do your business well, right? Then only you can become a good entrepreneur, right? So uh, unlike negative liberty, positive liberty is open to the idea of directing the individual either by law or an elite। ये भी याद रखना है कि नेगेटिव लिबर्टी में आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आप ही डिसाइड करोगे भैया क्या करना है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी एक आइडिया ओपन करते हैं कि इसमें एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करा जा सकता है थ्रू लॉ। जैसे लॉ हमें बता रहा भाई हेलमेट पहन लीजिए, आप समय पे टैक्स दीजिए, और बहुत सारे डायरेक्शंस आपको लॉ के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है। और एलीट भी कर सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है। आगे जाके रूसो जो है वो और बोलेगा कि लॉ आपको गाइड करेगा, वो लॉ आपके द्वारा बना होने चाहिए, वो सब बातें हम बाद में देखेंगे, बट इतना ये बस रफली याद रखना है कि पॉजिटिव लिबर्टी के साथ दिक्कत भी यही है, जो चार्ल्स टेलर बोलेंगे, बाकी बर्लिन बोलेंगे, इसीलिए ये नेगेटिव लिबर्टी की तरफ भाग रहे होते हैं कि ये जो है कि डायरेक्शन इंडिविजुअल को लीड दे रहा है। तो वो एलीट जो अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियंस गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको यूज करते हैं कि हम देखो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है वो सही होना चाहिए, आपको नहीं पता है कौन सा मूवी देखिए, क्या सुनिए, उस टाइप की चीजें, ठीक है। उसके बाद ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, राइट, हाउ थिंकर्स डिफाइन लिबर्टी, लिबर्टी कैसे देख रहे हैं। बाकी देखिए हॉब्स, लॉक, रूसो, जेसमिन, ये सब हम पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, पर फिर भी क्योंकि इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट तो आप थोड़ा थोड़ा रफ एक आइडिया लग जाए, फिर हम पढ़ें तो और बेटर तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो अगर ये बीच में आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है तो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन टाइप का, बाकी आप डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। तो मैंने जस्ट लिख दिया है क्योंकि ये आपके काम आएगा। हॉब्स जो है, लिबर्टी एज फ्रीडम सिग्निफाइंग द एब्सेंस ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स टू एक्शन दैट आर नॉट कंटेन्ड इन द नेचर इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द एजेंट। ब्रैकेट में एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, सीधी सीधी बात है, सारे इम्पेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए
आपके एक्शंस को उसमें एक्सक्लूड कर दे रहे हैं कि नेचर एंड इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द गेम। मान लीजिए कि भैया आप मैं क्रिकेटर बनने का टैलेंट ही नहीं है, फिर वो इम्पेक्ट उसको वो क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि आपका अनफ्रीडम, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एब्सेंस, एक्सटर्नल रेस्टोरेंट नहीं होने चाहिए भाई, अंदर से आपके पास वो टैलेंट है कि नहीं है वो अलग बात है, बट आपके पास एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनके लगभग नेगेटिव लिबर्टी का ही समझ बन रहा है। ठीक है, लॉक जो है, लॉक लिबर्टी को नेचुरल राइट मानते हैं। ये आगे हम देखेंगे किस किस चीजों को नेचुरल राइट, बस आप इतना याद रखिए अभी के लिए, लिबर्टी उनके लिए एक नेचुरल राइट है। और लॉक नेचुरल राइट क्या होता है ये सब बाकी हम डील करेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी में। ठीक है, liberty as natural right is no more than the liberty to do what the law of nature allows. In other words, what is morally permitted. अभी तक आप इतना समझिए कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो एक डायरेक्शन दे रहा है कि क्या मोरली परमिटेड है सोसाइटी में, क्या नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि लिबर्टी इज नो मोर देन लिबर्टी टू डू व्हाट द लॉ ऑफ नेचर। तो सब कुछ करने का आजादी नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से हॉब्स लगभग बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो मोरली परमिटेड है आप वो कर सकते हैं, दैट इज द ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, राइट। रूसो जो है, रूसो बोल रहे हैं, रूसो पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर हैं, आगे जाके इसके बारे में लिखा भी जाएगा पर हम बता देता हूँ। फ्रीडम इज कलेक्टिव वेंचर, फ्रीडम को वो कलेक्टिव वेंचर समझ रहे हैं कि फ्रीइंग वनसेल्फ फ्रॉम सेल्फिश मोटिव टुवर्ड्स अ लार्जर गुड फॉर द एंटायर, राइट। तो फ्रीडम को समझ रहे हैं कि आप अपने सेल्फिश मोटिव्स को छोड़ के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सोचो, अपने ग्रुप के लिए सोचो, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचो, अपने नेशन के लिए सोचो। और एक उनका कोट है, ट्रू लिबर्टी इज एन ओबीडियंस टू मोरल लॉस। वो बोलते हैं कि सही मायने में आप फ्रीडम तभी है आपका जब आप मोरल लॉस को ऑबे कर रहे हैं। ठीक है, जेएस मिल है वो दोनों के एडवोकेट हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के। भाई राजीव भार्गव तो इसी तरीके से उनको समझ रहे हैं। अ, तो ये एक कंटेस्टेशन रहता था जब हम भी एग्जाम देते थे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जेएस मिल इज एन एडवोकेट ऑफ दिस टाइप ऑफ लिबर्टी, तो वो दोनों में ही आते हैं क्योंकि उनका जो समझ होता है वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव लिबर्टी के डायमेंशन, वो दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगाइए, अगर एक ऑप्शन भी करना है तो आप नेगेटिव लगा दीजिए। Mill's views on liberty are based on his understanding of utility in the largest sense, grounded in the permanent principle of man as a progressive view. तो वो एक उनके जो व्यू है लिबर्टी का वो बन रहा है यूटिलिटी से, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट से। वो लार्जर सेंस में वर्ड यूज कर रहे हैं, जो परमानेंट इंटरेस्ट है मोन एज अ प्रोग्रेसिव। ये इसीलिए लार्जर सेंस ऑफ द यूटिलिटी का ये सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि जेस मिल बेंथम के स्टूडेंट रहे, बेंथम एक यूटिलिटी को समझाते हैं तो ये इसको रीडिफाइन करते हैं। वो अब जब जेएस मिल पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि उनका व्यू जो है लिबर्टी का, वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है यूटिलिटी की वहां से आती है। ठीक है, और चार्ल्स टेलर जो है बात कर रहे हैं कि इनसफिशियंसी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। Charles Taylor points out that while negative liberty may be a necessary prerequisite, but not a sufficient condition for freedom. For Taylor, the concept of freedom is inclusive of the concept of self-realization. Charles Taylor बोल रहे हैं कि नेगेटिव लिबर्टी नेसेसरी है, एक सॉरी वो ये मेरे से स्लाइड स्किप हो गया। ओके, वेट वेट अ सेकंड, थोड़ा मेरा लैपटॉप जो है वो दिक्कत दे रहा है। हाँ ठीक है, आ गए हैं ये। While negative liberty may be a necessary prerequisite but not a sufficient condition freedom. नेगेटिव लिबर्टी तो चाहिए भाई, तो वो नेसेसरी है, वो तो मतलब मिनिमम है उसके बाद, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि आप फ्रीडम अचीव कर पाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंक्लूसिव, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम का वो इंक्लूसिव है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करें, आप अपने टैलेंट को रियलाइज कर पाए, आप अपने पोटेंशियल को समझ पाए, आप अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते। ठीक है, तो चार्ल्स टेलर बता रहे हैं कि इनसफिशिएंट नेगेटिव लिबर्टी, तो उसमें पॉजिटिव लिबर्टी का भी एंगल होना चाहिए, मतलब दैट इज वेरी इंक्लूसिव। अगर हम फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात तो कर ही रहे हैं। फिर अब हम जैसे इस so मेरा ये थर्ड स्लाइड है, राइट। तो इसमें अब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दिया हूँ कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या क्लासिफिकेशन है अभी तक, और फिर उसके बाद थिंकर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो थर्ड थिंग इज कि सोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, राइट। ये जो कॉन्स्ट्रेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। तो दो मैंने लूजली ऐसा लिखा है
एक डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल है। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है डोमिनेशन के थ्रू, और वो फोर्स के थ्रू भी होता है डोमिनेशन, और कई बार लॉस के थ्रू भी होता है। जो लॉस हैं बट वो भी एक्चुअली दे आर बैक बाय फोर्स। अगर आप किसी लॉ को नहीं मानेंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो देन फोर्स विल यूज ऑन यू, राइट। तो वो एक्सटर्नली समझ सकते हैं। सेकंड इज स्ट्रक्चरली, राइट। सोशल इनइक्वालिटी और एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, वो भी एक तरीके से कांस्टेंट एक्ट कर रहे हैं ना। पॉजिटिव लिबर्टी यही तो कह रहा है एग्जैक्टली, कि अगर भाई मान लीजिए आपको आगे जाके रिसर्च स्कॉलर बनना है भाई, सीरियस रिसर्च स्कॉलर बनना है, पर आपके पास क्या बोलते हैं, आप ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है, कम्युनिटी छोड़ी आपके पास ही पैसा नहीं है, राइट। और आप एक फीमेल हैं, फिर वो सब एडेड डिसएडवांटेज ऐड करते हैं, तो स्ट्रक्चरली भी आप कॉन्स्टेंट होते हैं अपनी फ्रीडम को रियलाइज करने में, राइट। तो ये दो सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल भी है, स्ट्रक्चरल भी एक्सटर्नली है, पर बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल का एक बहुत खतरनाक फॉर्म वो होता है, राइट। वो आपको हेल्प करते हैं। मान लीजिए आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं, वो सब चीजें तो हैं ही, फिर बाद में आपको पढ़ने का भी इतना कांस्टेंट है, तो वो सब ऐड करती हैं चीजें, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट, राइट। जो कांस्टेंट है वो क्यों चाहिए भाई, मतलब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं बोला था ना कि सोशली नेसेसरी कांस्टेंट हैं, वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो केओस हो जाएगा सोसाइटी में। तो ये बता रहे हैं फर्स्ट टू अवॉइड केओस, केओस को अवॉइड करने के लिए एवरी सोसाइटी नीड्स सब मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस और सेटल डिस्प्यूट्स। तो कुछ हर सोसाइटी को कुछ मैकेनिज्म चाहिए जो वायलेंस को कंट्रोल करे, डिस्प्यूट्स को सेटल करे। स्टेट तभी तो चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ बोल देना कि सबको फ्रीडम है, आप जो करना चाहे करिए, तो इतना लोग अभी इस लेवल पे तो नहीं पहुंचे कि वो बिना स्टेट के या बिना कोई लॉस के, बिना कॉन्स्ट्रेंट के उनका काम चल जाए, ठीक है। Ideally, in a free society, we should be able to hold views, develop our own rules of living, and pursue our choices. हम अपने व्यूज होल्ड करें, अपने ओन रूल्स ऑफ लिविंग हो, परस्यू करें हमारे चॉइसेस को। बट द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी टू रिक्वायर सम कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं। एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्ड दैट वी बी विलिंग टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को समझें, और व्यूज को समझें, बिलीव्स को समझें, राइट। दैट इज द कोर ऑफ टॉलरेंस, राइट। टॉलरेंट सोसाइटी में ये चीज तो आपको समझना ही होगा कि यू हैव टू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या ऊपर क्या आ रहे हैं देन, हाउ टू आइडेंटिफाई विच कॉन्स्टेंट्स ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफाइबल, विच आर नॉट। कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं फ्रीडम पे जो नेसेसरी हैं, जस्टिफाइबल है, अगर नेसेसरी है तो क्या वो जस्टिफाइबल है, कौन से नहीं है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल में जस्टिफाइबली से दैट ये करा जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, व्हाट नॉट। थर्ड क्वेश्चन इज, आर देयर एनी एरियाज ऑफ लाइफ एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्रॉम फ्री ऑल एक्सटर्नल कॉन्ट्रेंट्स। जो नेगेटिव लिबर्टी का एक डोमेन है कि ये इनवायलेबल है, इसमें भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ना स्टेट कर सकता है ना सोसाइटी कर सकता है, राइट। आप किससे शादी करेंगे, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप आप कौन सा हॉबी है, ये सब एक डोमेन है क्या नेगेटिव लिबर्टी का, जो बोलता है कि इसमें स्टेट को, सोसाइटी को, किसी को एंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन कि कौन से कॉन्स्टेंट है वो नेसेसरी हैं, और नेसेसरी है तो आर दे जस्टिफाइबल, राइट। और और जो अथॉरिटी है वो कौन सी होगी जो बताएगी कि भाई ये करा जाए, ये ना करा जाए। क्या आपको समाज बोलेगा कि फलाना फिल्म देखनी है, ये फिल्म नहीं देखनी है, ये किताब पढ़नी है, ये नहीं किताब पढ़नी है, ये व्यूज होल्ड कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, राइट। ये कौन बोलेगा, कौन सा अथॉरिटी होगा, राइट। सोसाइटी होगा, स्टेट होगा, सोसाइटी के अंदर कौन सा ग्रुप होगा, कौन नहीं होगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा नहीं होगा, राइट। थर्ड है कि कुछ ऐसा डोमेन होगा क्या जो मतलब सारे एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट से परे हो गए, राइट। तो इन सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जेएस मिल जो है वो हमें हेल्प करते हैं। he provides us with a concept of harm principle, right? Oh, sorry, not concept, it gives us a principle, right, which is called as harm principle. तो उसको भी जब यूज कर रहे हैं तो हम उसकी लिमिट, कॉम्पिटेंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सब ध्यान में रखें, राइट। वन फिट सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि जस्ट हाँ प्रिंसिपल बोल दिया और वो लगा दिया और हमें सारे क्वेश्चनों का जवाब हो गया, नहीं तो फिर अदरवाइज इतने सालों से हम एक ही कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे थे, हमें रीथिंक करना होता है उसको, राइट। तो मैं उनके डायरेक्ट कोट आपको समझा रहा हूँ तो उससे आपको बहुत इजी होगा वो चीजें समझना कि the sole end for which mankind are warranted,
individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of the member is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others, right? The sole basic सीधी सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव है मैनकाइंड का कि भाई वो जस्टिफाई करें इंडिविजुअली कलेक्टिवली हम किसी की लिबर्टी में इंटरफेयर करेंगे, किसी के एक्शन में इंटरफेयर करेंगे, वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, राइट? कि ये मुझे मार रहा है भाई तो मैं उससे बचूंगा, तो आप किसी की लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकते हो उसके एक्शन को, राइट? दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज, किसी भी मेंबर का हम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं एक सिविलाइज कम्युनिटी में अगेंस्ट उसके विल के अगेंस्ट इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, मतलब किसी दूसरे को हार्म नहीं करना चाहिए। इससे सिंपल सिंपल सा बात ये है कि मिल एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है बेसिकली कि जो एक्शंस जिनका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इंडिविजुअल एक्टर पे ही हो, किसी और पे ना हो। अदर रिगार्डिंग एक्शंस है कि जिसका कॉन्सिक्वेंसेस किसी दूसरे पे हो। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इन द सेंस कि रफली एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आप पढ़ते लिखते नहीं है भाई, आपका बिल्कुल जी नहीं लग रहा पढ़ने लिखने में, तो ये लार्जली एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो आप परेशान होंगे, ठीक है, बाकी तो कोई होगा नहीं। अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया कि भाई आप जाके आप गए और पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने लगे, ठीक है, तो आप अपना लंग्स तो खराब कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे को भी एक पैसिव स्मोकिंग करा रहे हैं, राइट? तो उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरे इंसान का होगा। तो ये हालांकि आप इसको समझेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत भरा चीज हो जाता है कि कोई भी एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं होता है, राइट? अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे तो आपके दोस्तों को दुख हो सकता है, आपकी फैमिली को दिक्कत होगा, आपकी फैमिली आपसे कनेक्टेड है। तो हम्म, मतलब ये एक थेरेटिकल लेवल पे आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, बट कोई भी एक्शन आइसोलेशन में नहीं होता है ना, उसका इफेक्ट किसी इंसान पे तो पड़ता ही है। तो ये एक दिक्कत होता है कि ये हार्म प्रिंसिपल को जब हम लगाने की कोशिश करें कि ये सोशली नेसेसरी कॉन्स्टेंट है, ये नहीं है, तो उसमें ये दिक्कत होता है। तो अभी आपको इतना ही बस याद रखना है कि वो हु मेक्स एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, राइट? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, द रिगार्डिंग एक्शन, तो वो मिल है। और ये इस तरीके से सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को समझना, द रिगार्डिंग एक्शन को समझना, बस अभी आप इतने याद रखिए। बाकी सारे डिबेट्स जो है वो सब चलते रहेंगे और आप उनको बाद में देख सकते हैं, राइट? और कॉन्स्टेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये बोल रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टेंट है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं। हार्म कॉज मस्ट बी सीरियस, जो हार्म हो रहा है वो सीरियस होना चाहिए, मतलब माइनर हार्म के लिए मेल बोल रहे हैं कि सोशल डिसअप्रूवल कर दीजिए, फोर्स ऑफ लॉ यूज मत करिए। मतलब मिल, इससे ये भी पता चल रहा है कि मिल जो है वो लॉ को, मतलब हर छोटी छोटी बात पे लॉ नहीं लाना है, राइट? कि अ, इसने मुझे बस क्या बोलते हैं, इसने मेरा कॉपी छीन लिया था, ठीक है, तो आप नहीं नहीं मैं तो लॉ का यूज करूंगा और वो नहीं करूंगा, और ये मतलब इस तरीके से एटलीस्ट मिल का अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल जो राजीव भार्गव ने दिया था वो ये है कि मान लीजिए आप कि पड़ोस में कोई तेज तेज गाने बजाता है रात में, ठीक है, एक दिन बजा रहा है ना, रोज बजाएगा तो वैसे भी परेशानी होगी। अगर वो एक दिन बजाता है, उसके पार्टी है, तो फिर आप एक सोशल डिसअप्रूवल कर सकते हैं कि आपने उसको बोला, वो नहीं माना, और अगले दिन आप उसको ग्रीट ना करें, या फिर आप अ, अपने हाव भाव से उसको ये दिखाएं कि हम खुश नहीं है सोसाइटी, आप जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, राइट? पर उसमें फोर्स ऑफ लॉ, लॉ को पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, राइट? ये मिल का अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो हालांकि हनी सिंह एक गाना बजाते इस पे कि आंटी पुलिस बुला ली है, तो मार्क्स, वो सॉरी मिल जिस तरीके के बोल रहे हैं कि आंटी पुलिस ना बुलाए, ठीक है, और आंटी बस सोशल डिसअप्रूवल दिखाए एक तरीके से, राइट? तो एक और एग्जांपल है हेट कैंपेन। बट हेट कैंपेन्स जो होते हैं आजकल, तो हम सब ट्विटर विटर सोशल मीडिया सब कुछ देखते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा हेट कैंपेन एग्जैक्टली क्या है। वो सीरियस हार्म है, राइट? पर उसके लिए भी मैं ये बोल रही कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मत करो भाई। अगर किसी के व्यूज जो हैं वो हेटफुल है किसी कम्युनिटी के लिए, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मत दीजिए आप। उसको कुछ बहुत सारे लॉज में रेमेडी है वो यूज कर सकते हैं, राइट?
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है, कि जो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए, बेसिक बात ये है। और मिल डिस्कसेस लिबर्टी अंडर थ्री एस्पेक्ट्स में वो डिस्कस करते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी और इंडिविजुअल्स, ये सब पढ़ेंगे। बस जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों हम मिल का जो जो चार रीजन दी हैं मिल ने फेवर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो क्यों है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन इज ऑफ्टन अंडरस्टूड एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो तीन एस्पेक्ट्स में वो लिबर्टी को डील कर रहे हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट को हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह समझते हैं, राइट। बस इतना आप याद रखिए कि वो चार रीजन दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए, राइट, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होना चाहिए और वो लगभग एब्सोल्यूट क्यों होना चाहिए, अनलेस इट इज कॉजिंग हार्म टू द अदर्स, राइट। वो हार्म कैसे होगा वो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि इतना इजी नहीं होता, राइट, कि क्या हार्म कॉज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट। तो वो फर्स्ट बोल रहे हैं कि चार रीजंस में से कि फर्स्ट इज नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स। कोई भी आइडिया वो कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता है, उसमें सर्टेन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होता है। जैसे आप देखिए कि बहुत चतुर तरीके से आजकल इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिशियंस है, खासकर पॉलिटिशियंस, राइट, वो कोई भी आइडिया को मतलब उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होगा, मतलब जैसे हाफ ट्रुथ जो होता है एग्जैक्टली, राइट, उसमें आधा सच है आधा गलत है, राइट। तो जो सच बोल रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो झूठ बोल रहे हैं वो कम्युनिटी में वायलेंस करा सकता है, हेट स्प्रेड करा सकता है। तो नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, कोई भी आइडिया कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता, उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होता है। तो इसीलिए आप उसको बोलने देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, तभी तो वो जो थोड़ा एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है वो समाज को उससे फायदा होगा, राइट। तो एटलीस्ट बोलने दीजिए किसी को, ठीक है। सेकेंड है ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ। ट्रुथ अपने आप में इमर्ज नहीं होता, राइट। ट्रुथ इज बेसिकली आइडिया है, राइट, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ आइडिया बोला, आपने बोला नहीं 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 ऐसे होता है, राइट। तो वो ट्रुथ वहां से इमर्ज कर रहा है, राइट। कई बार इस तरीके से आप जब देखेंगे डायलेक्टिक्स मार्क्स का जो हम देखेंगे वो कुछ इसी तरह टाइप का है, राइट, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होंगे, फिर एक आइडिया उभर के आएगा, फिर तो उस तरीके से मतलब है कि ट्रुथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज से निकल के आता है, बेसिक बात ये। थर्ड है दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज जो हमने अभी बात करी इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज ऑफ कंटिन्यू वैल्यू फॉर ऑल टाइम्स। वो सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज वो वैल्यूएबल पास्ट में नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है कि ऑल टाइम्स के, राइट। कि कई बार ये होते हैं जैसे अगर भाई अ, जैसे बार बार जो आइडियाज हैं वो चैलेंज होते रहेंगे ना, तो हम वो एक बेसिकली कि वो एक क्लेशर नहीं बनेंगे, राइट। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, राइट, कि बार बार अगर कोई आपके आइडिया को कंटेस्ट कर रहा है तो वो द ट्रुथ इमर्जेस एज स्ट्रॉन्ग, राइट। बार बार वो चीज अगर कोई बोल रहा है तो अगर उसको कोई कंटेस्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज आ रहा है, तो जो हमारी समझ है किसी बारे में या हम उसको ट्रुथ समझ रहे हैं वो भी स्ट्रांग होती है, राइट। थर्ड है वी कांट बी श्योर दैट वी व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू, राइट। हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, उसके सिवा कोई ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बर्नार्ड रसेल का एक इंपॉर्टेंट कोट मुझे याद आता है, जैसे वो बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर मैं एक कॉन्टेक्स्ट उसको बता सकता हूँ। वो ये है कि आई विल नॉट डाई फॉर माई ट्रुथ, राइट, बिकॉज आई मे बी रॉन्ग, राइट। तो वो वही बोल रहे हैं, राइट, कि जो हम सोच रहे हैं हो सकता है वो सच भी ना हो, तो इसीलिए एटलीस्ट कोई उसको कंटेस्ट कर रहा है तो उसको बोलने दीजिए, राइट। एक एक और स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा नहीं जा सकता, तो ये आपने बहुत सुना होगा, खासकर सचिन थरूर जो हैं वो बहुत इसको बोलते रहते हैं। एक वॉल्टेयर करके फिलोसोफर हैं, वो उनका एक स्टेटमेंट है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट, राइट। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। मतलब मैं तुम्हारी बात जो आप बोल रहे हो उसे डिसअप्रूव कर सकता हूँ, मैं उससे अग्री नहीं कर सकता हूँ, अग्री हो सकता है नहीं करता हूँ, बट मैं डिफेंड करूंगा आपका राइट जो है वो उस बात को बोलने का, कि आप भाई ये बोलना चाहते हो तो आप बोलिए, उस राइट को मैं डेथ तक डिफेंड करूंगा। तो कितना गहरी बात बोली गई है हर एक सोसाइटी को, नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी को, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये रिकॉग्नाइज करें। अगर दूसरा इंसान की बात से हम डिसएग्री कर रहे हैं उसके बाद भी हमें उसके राइट का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई आप ये बोल सकते हैं,
ठीक है, तो अब बस जस्ट लास्ट स्लाइड रह गया है, तो हम लास्ट स्लाइड में क्या है उसको हम एक बार देखते हैं। क्लियर है? ठीक। तो लास्ट चीज है वो है लिबर्टी फ्रीडम इज ट्राइडिक रिलेशन, राइट। बिफोर दैट मैं भूल गया, मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि लिबर्टी और फ्रीडम में मार्क्स कैसे अंतर करते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग जो है, मार्क्स डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फ्रीडम इज, कि व्हाट लिबर्टी इज नॉट। ठीक है। तो मार्क्स जो है, एक तो यार एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मार्क्स अपनी राइटिंग में फ्रीडम वर्ड यूज करते थे, लिबर्टी वर्ड यूज नहीं करते। एक तरीका ये हो सकता है कि मार्क्स का एक फ्रेमवर्क है, राइट। उसको आप समझिए कि मार्क्स जो लिबर्टी है, जस्टिस है, ये कॉन्सेप्ट है, इनको बेसिकली वो मान रहे हैं कि इनका जो समाज है वो एक लिबरल कॉन्सेप्शन से है, राइट। कि ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरलिज्म की द्वारा यूज करे गए हैं, राइट। तो वो जनरली अवॉइड करते थे कि लिबरलिज्म की वोकेबुलरी को यूज ना करें। जैसे वो अगर आप जस्टिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि मार्क्स जस्टिस के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे। मतलब वो बेसिकली ये नहीं कह सकते कि वो इनजस्टिस, मतलब वो जस्टिस में बिलीव नहीं करते, राइट। वो तो सबसे ज्यादा जस्टिस में तो वही बात कर रहे हैं, राइट। पर बात ये कि वो जनरली अवॉइड करते थे वोकेबुलरी को। तो इसीलिए आप एक सिंपल सा, अगर आपको कोई बोले कि भाई लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है, तो आप बोलिए कि लार्जली स्कॉलर्स उस पर एग्री कर रहे हैं, बट मार्क्स जो है वो फ्रीडम वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। वो लूजली इसलिए क्योंकि वो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते थे, राइट। और अभी इतना आप याद रखिए, उसके बाद अगर हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में डील कर लेंगे। तो गेरल्ड मैकलम करके एक राइटर हैं, इनका आप याद रखिए नाम, कि ये जो हैं बोल रहे हैं, ये ट्राइडिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी देते हैं। वो बताते हैं कि फ्रीडम वो एक ट्राइडिक रिलेशन, ट्राइडिक मीन्स थ्री, तीन लोगों का आगे तब जाके वो एक रिलेशनशिप बनती है लिबर्टी का, राइट। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि नो सिंपल डाइकोटॉमी, राइट। गैरल मैकलम बोल रहे हैं कि कोई सिंपल डाइकोटॉमी नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की, जिस तरीके से हमने जो पढ़ा, राइट। तो उसमें आप जैसे कई राइटर्स को फिट भी नहीं कर पाएंगे कि ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला है, और ये है वो है। वो एक लूजली हम करते हैं, राइट, ऑथर्स को समझने के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि कोई सिंपल डाइकोटॉमी नहीं है। ये गेरल्ड मैकलम आर्ग्यू कर रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में। ही एक्सप्लेन्स लिबर्टी एज अ ट्राइडिक रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग मैनर। वो बोल रहे हैं कि एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बिकम एक्स, जेड, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम अ सब्जेक्ट और एन एजेंट इन दिस example, x is an subject or an agent, right, which is free to do or become certain things, right। x जो है वो जो है x जो है उनके पास जो फ्री फ्रॉम y, मतलब कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट नहीं है y के द्वारा, और वो z बन सकते हैं, राइट। वो z कर सकते हैं, z बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम अ सब्जेक्ट और एजेंट इज फ्री टू डू or become certain things. Freedom is therefore a triadic relation. That is the relationship between three things. एक एजेंट है, certain preventing conditions and certain doings of becoming of the agent. तो एजेंट जो है वो एक्स हो गया सिनेरियो में, सर्टेन प्रिवेंटिंग कंडीशंस वाई हो गई, और सर्टेन डूइंग से बिकमिंग ऑफ द एजेंट जेड हो गए। तो गैरल मैकलम बेसिक, इतना आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो बस इतना सिंपल से याद रखिए कि वो बोल रहे हैं कि लिबर्टी है वो एक ट्राइडिक रिलेशन, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एजेंट होगा, एक सर्टेन कंडीशंस होंगी, और थर्ड वो जो क्या बनना चाहता है। तो इतना आप याद रखिए बस। लार्जली एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतना रफली अगर याद रहता है इनफ होगा। लास्ट कंक्लूजन में मैं थोड़ा सा और इससे कंक्लूजन, इसको एक तरीके से मैं रिकैप रख रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी क्या है, तो उस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो कंक्लूजन में है, पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइजेस दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी, राइट, नॉट आउटसाइड इट। तो वो बोल रहे हैं कि आप जो आपका फ्रीडम है सोसाइटी के अंदर ही होगा, सोसाइटी के बाहर नहीं होगा। हेंस ट्राइज टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा समाज की संरचना करें कि जिससे क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति है उसका
डेवलपमेंट हो, और नेगेटिव लिबर्टी जो है वो कंसर्न है इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस नॉट विद द कंडीशंस इन सोसाइटी। कि नेगेटिव लिबर्टी है वो फोकस कर रहा है कि कुछ डोमेन ऐसा होना चाहिए जिसमें नॉन इंटरफेरेंस हो, सोसाइटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या किसी और के द्वारा। वो कंडीशन से उसको कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सिंपल सा अगर कुछ याद नहीं रख रहा है तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव लिबर्टी कंडीशंस पे फोकस कर रहा है कि सोसाइटी कुछ ऐसी कंडीशंस दे जिसमें हम फ्रीडम को रियलाइज कर पाए। सिर्फ ये बोल देना कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं पर वो कंडीशंस ही नहीं है तो कैसे होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि अ, आपको बोल रहे हैं कि अ, आ, आपको पढ़ने की आजादी है भाई, जिसको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्कॉलर बनना बनिए। बट डू यू हैव दोज रिसोर्सेज? क्या सोसाइटी आपको उस टाइप का इंस्टीट्यूशंस दे रहा है? क्या सोसाइटी उस टाइप की रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम इतने अच्छे स्कॉलर बन सके? क्या आपके पास किताब्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास वो गाइडेंस है? तो बेसिकली आपको ये रखना है कि दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोई ये है कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए भाई, दूसरा कांस्टेंट के साथ साथ वो कंडीशंस भी होनी चाहिए। तो ये आपको इतना याद रखना है। और पॉजिटिव लिबर्टी के साथ यही दिक्कत है कि वो कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए आपका कुछ फ्रीडम कॉन्स्टेंट करा जाता है। तो हर एक अथॉरिटेरियन, हर एक टोटलिटेरियन लीडर, वो रिजीम या लीडर ये कोशिश करता है कि वो पॉजिटिव लिबर्टी को रियलाइजेशन के वजह से आपको बहुत सारा कॉन्स्टेंट आपके ऊपर लगा दी। तो यही चार्ल्स टेलर का डिफेंस है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, यही बर्लिन का डिफेंस है। बाकी आप देखिए कि जैसे बताया ना, फ्रीडम इज ट्राइडेक रिलेशन, कोई सिंपल डाइकोटोमी नहीं है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, यू नीड बोथ, राइट? नेगेटिव लिबर्टी भी चाहिए, पॉजिटिव लिबर्टी भी चाहिए। एक बेसिकली इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, राइट? फ्रीडम की हम बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इटसेल्फ, जैसे चार्ल्स टिलर एक जगह बोल रहे हैं ना कि दैट इटसेल्फ इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, राइट? एक सेकंड देखते हैं हम, वो तो स्लाइड कहाँ गया। हाँ देखिए, ये रहा। फॉर टेलर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन दैट इटसेल्फ इंक्लूड, राइट? तो ये सब एक बाइनरी में सोचना कि नेगेटिव लिबर्टी ये है, पॉजिटिव लिबर्टी है, एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, राइट? ओके, बिफोर एंडिंग दिस क्लास, let me tell you that uh, wait a second. Okay, so let me tell you this. Uh, Please check the links in the description box. The first demo class, and आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो उसको प्लीज आप एक बार देख लीजिए कि उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो प्लीज आप एक बार उसको देखिए। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो है। कुछ इस तरीके से हमारा क्लास रहेगा। लार्जली हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाए, रिवाइज भी कराया जाए। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने काफी हद तक अच्छी तरीके से चीजें कवर करने का कोशिश करा है, एक अटेम्प्ट करा है। तो आप इसको देख सकते हैं। और हमारा कुछ पुराना वीडियो भी पड़ा है, कुछ लोगों का स्ट्रेटेजिक, एक स्ट्रेटेजिक मूव क्या रहा, किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, ये आप देख सकते हैं। प्रतिभा ही के जो अभी जेएनयू में पढ़ रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, वो लास्ट बैच में पढ़ी थी। और एक एक अजमेर करके शायद है, आई आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। वो लगभग सारा यूनिवर्सिटी में इनका हुआ, फिर एंड में वो डिसाइड करे कि हम ड्यू में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो भी ड्यू में एनरोल्ड हैं। और काफी सिलेक्शंस हैं। आपको सारा डिटेल जो है वो चैनल पे मिलेगा, चैनल पे देखिए। मैंने खुद 2 पार्ट में एक पेपर एनालिसिस करा लास्ट ईयर का, जो पीजी पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस है, वो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का टीचिंग रहने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। और सामदत्त जो है बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर हैं। वो खुद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं।
और वो खुद पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स वो जेएनयू से कर रहे हैं, साथ में ही थे हम लोग। और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। प्लीज आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको ग्रुप का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इस बैच के बारे में भी मिल जाएगा, और बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो एक नॉर्मल यूट्यूबर बोलता ही। थैंक यू।